हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। की हाल है बच्चों सारिਆਂ ਦਾ। सो ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਮੇਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਟਿਪੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਰੋ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆਊਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰਸ ਫਰੋਮ वन ਵੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਥੋੜਾ ਬੈਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਨ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖੂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਐਨ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ ਐਮ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਐਮ ਐਨ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਮ ਐਨ ਉਹ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਮਰਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਐਨ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਰ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 90 ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ 90 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀ ਲੈ ਲੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਖੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਹ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ ਬਾਏ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਬੀ ਬਾਏ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਤੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਆਰ ਸਾइन थीटा। इदा ही आऊगा ना, साइन थीटा का बराबर होगा हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। जे आप आ वाली ट्रायंगल ले लीए, सो ये आप दो कंपोनेंट च तोड़ लिया, तो दो कंपोनेंट च ए बी की थां ते अपने को वैल्यू आ गई। सो ये ज़्यादा ईजी हो गया ना रैक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला केस। सो ये एक चीज़ है जी टेक्नीक बेसिकली तुहानूं मैं 2-3 मिनटां च इन्हां च ऑलरेडी समझा दित्ती है। इन्ना की काम हुंदा पुत्त समझण वाला। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਹੋਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ठीक है, दिस इज़ बेसिक आइडिया। सो तुहाडा इंटरस्ट बच जूगा। सैकेंड जिहड़ा आ वो टॉपिक आपां करांगे जीरो वैक्टर। जीरो वैक्टर दे विच कुछ नहीं है बेटा, इहदी एक डेफिनेशन आ ते बस इहनूं समझना कि जीरो वैक्टर की हुंदा। समटाइम्स इट हैपन्स कि मान लो आ ए वैक्टर है, हुण ए वैक्टर दे विच अपने कोल की चीज़ां आ, एक तां ए दा मैगनीट्यूड आ, कोई वैल्यू आ, दूजा इहदी डायरैक्शन आ। इदां ही सी ना। जे अपने कोल डायरैक्शन कल्ली रह जाए, मैगनीट्यूड जीरो हो जाए, फिर की बन जूगा, जीरो दे उत्ते एरो, क्योंकि डायरैक्शन तो उत्ते हैगी है। सो हुण आपां जीरो वैक्टर कह दांगे। ठीक है, इहनूं आपां नल वैक्टर भी कह सकते हैं। सो थोड़ा जिहा आपां जीरो वैक्टर की पहलां गल कर लैंदे आ। वैसे इहदी डेफिनेशन भी आपां कर ही लई हुण, पर इहनूं आपां अखरां च किद्दां लिखना वो मैं तुहानूं लिखा दिंदा। सो नैक्सट आपां चलीए, नैक्सट चलो स्टार्ट करिए। सो जीरो वैक्टर की डेफिनेशन आप पहला देख लें। मेरी आदत है छोटी Z नूं वड्डा करके पाउण दी। सो नथिंग ऑफेंसिव, दिस इज़ जीरो वैक्टर। दोबारा लिख लें। चलो हुण जीरो वैक्टर की हुंदा है, तुसीं इदां लिख सकते हो, इट इज़ दैट वैक्टर, इट इज़ दैट वैक्टर, इट इज़ ए वैक्टर which has zero magnitude and an arbitrary direction। आर्बिट्ररी का मतलब होंदा कोई भी डायरैक्शन। ठीक है, कोई डायरैक्शन दिती है। सो आप इहनूं रिप्रजेंट कर सकते हैं जिद्दां कि आपां हुणे ड्रॉ कीता सी, जीरो पा के उत्ते एरो पा देना। ये जीरो तुहाडी जीरो लगनी चाहिए है, ओ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, सो इनू असी बोलते हैं सेकंड। वी कैन कॉल इट आल्सो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नल वैक्टर।
So while making your notes, you will write down the definition as, I repeat, it is that vector which has zero magnitude and an arbitrary direction. The zero vector is represented by this thing. ठीक है, ब्रैकेट च लिख लो, लिखना है था एरो ओवर ए जीरो नंबर. सो इट इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, NULL. ठीक है जी, नल स्टैंड्स फॉर जीरो नॉर्मली. सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਐਕਸਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. Illustration of zero vector, you can write here number 1, when a vector is multiplied by zero vector. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, when a vector is multiplied by zero vector, the result is a zero vector. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਣਾ 0, 2 multiplied by 0 is 0, 7 multiplied by 0 is a 0, x multiplied by 0, 0 normally. So here also in the vector world what happens, 0 vector ठीक है into a vector is 0 हो जाता है. सॉरी, जीरो वैक्टर नहीं, इतने जीरो आप डायरेक्शन लेने, सिंपली जीरो इंटू ए वैक्टर जीरो वैक्टर. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड नाल मल्टीप्लाई हो रहा ना. अगर हुण किसी वैक्टर नूं जीरो नाल मल्टीप्लाई किया, उहदा मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा. क्यों? क्योंकि जीरो इज़ अ नंबर, पर डायरेक्शन नहीं खत्म हो रही. सो इट अकर्स एज जीरो वैक्टर. वैन ए वैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, अगेन सुन लो, द रिजल्ट इज जीरो वैक्टर. ठीक है, सैकेंड गल लिख लो तुसी, पॉइंट नोट करने वाला वो ये है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए जीरो वैक्टर टू इट्स ओन नेगेटिव वैक्टर. दोबारा सुन लो, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए वैक्टर टू इट्स ओन वैक्टर इज ए जीरो वैक्टर. फॉर एग्जाम्पल मैं की कीता, मेरे को आ एक वैक्टर है ए. ठीक है, हुण इहदे बिल्कुल एंटी वैक्टर हैगा अपने कोल बी वैक्टर. मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन वक्री है. वी कैन राइट इट एज, इनू असीं लिख सकते हैं माइनस ए वैक्टर. हुण जे ए वैक्टर दे विच असी बी वैक्टर ऐड कर दांगे, दैट इज माइनस ए वैक्टर ऐड कर दांगे, तो मेरे को की बन जू, ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर, सो जीरो वैक्टर. ठीक है, इदां अपने को यह आ जाता है माइनस ए जीरो. ठीक है, सो हुण तक असीं की सीख लिया, जीरो वैक्टर की हुंदा आ, जीरो वैक्टर किदां प्रोड्यूस हुंदा आ. ठीक है, सो हुण आपां थोड़ियां जिहियां एग्जाम्पल्स के बारे भी गल कर लैंदे हैं. एग्जाम्पल्स इत्थे भी चल सकते हैं, नैक्सट स्लाइड पे भी जा सकते हैं. चलो जी, examples of zero vector. ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, then that tendency would be zero vector. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुसी इदां लिख सकते हो, तुसी ऐ लिख लो नंबर पा के, द वेलोसिटी वैक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज ए जीरो वैक्टर. मीनस अगर मेरे को पार्टिकल आ वाला जिहड़ा ए स्टेशनरी है, जा नहीं रहा, पर टेंडेंसी इहदी इस डायरेक्शन च, तुसी ऐ लिख सकते हो वेलोसिटी वैक्टर जिहड़ा है इहदा. ठीक है, वेलोसिटी वैक्टर ऑफ ए स्टेशनरी वैक्टर is
0 ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਐ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਓਰੀਜਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 0 ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ 0 ਆ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਭਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸੀ? ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਲੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਇਹ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਪ ਦ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। just write down, it is a process of splitting a single vector into two or more vectors. ठीक है जी, it is the process of splitting, I write here the keyword, splitting a single vector into two or more vectors in different directions which together can produce, splitting in different directions, you can write here, which comma paake likh liyo, which together produce the same effect as is produced by the single vector alone. ठीक है जी, alone ikalla। दोबारा definition repeat कर रहे हैं, it is the process of splitting of a single vector into two or more vectors in different directions which together produce the same effect as is produced by the single vector alone. ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, the vector into which the given single vector is splitted are called component vectors. अगर मैं इस वेक्टर नू फॉर एग्जांपल आ कोई वेक्टर है जी आर वेक्टर, इनू मैं दो वैक्टर्स दे विच रिजॉल्व कर लिया, ए ते बी मान लो, ठीक है। सो जिहड़े ए ते बी वैक्टर्स ने, ए एंड बी वैक्टर, these are called कंपोनेंट वैक्टर्स, या कंपोनेंट्स ही कह लो, कंपोनेंट वैक्टर की लोड़ है, ठीक है। यू कैन कॉल कंपोनेंट्स। समझ गए जी, कंपोनेंट्स नू इकट्ठा जोड़ के एक क्वांटिटी बन जाती होंदी है। सो कंपोनेंट वैक्टर्स या कंपोनेंट जिदा मर्जी नू लिख लो। फॉर एग्जांपल तुसी ड्रा कर सकते हो, जे लिखना ही है, लेट ए वैक्टर आर बी रिप्रेजेंटेड बाय, लेट ए वैक्टर आर बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस पॉइंट ਨੂੰ स्टार्टिंग ਨੂੰ O मान लो, ਇਹਨੂੰ Q मान लो, पुरानी डायग्राम ਤੇ चलते हैं। सो लेट A एंड B रिप्रेजेंटेड बाय, कोई A वैक्टर ड्रा कर लिया आप, फिर B ड्रा कर लिया आप। लेट A एंड B आर रिप्रेजेंटेड बाय OP वैक्टर एंड B का नाल रिप्रेजेंट हो रहा है PQ वैक्टर, ठीक है। सो इट मीनस की होगा फिर अपने कोल पिछे कीता भी सी आपां, OQ वैक्टर वुड बी इक्वल टू
OP प्लस PQ। सो इत्थे असी यही किया सी ना, R वैक्टर इज इक्वल टू A प्लस B। ये हुण रिवर्स हो गया ट्रायंगल ला वैक्टर एडिशन का, रिवर्स हो गया इत्थे, ठीक है। सो हेयर वी कैन से दैट इफ R वैक्टर is written in terms of A and B वैक्टर, ਜਾਂ R वैक्टर ਨੂੰ दो वैक्टर्स A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਤੇ ਵੀ B ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ these are what component vectors। समझ गए पुੱਤ? समझ आ गई होनी चाहिए है, ठीक है। नहीं आई दस्यो, दोबारा दसांगे, वीडियो भी दोबारा सुन लियो, जे नहीं समझ आई फिर होर मैथड नाल दसांगे, ठीक है। बट यू शुड टेल, ओके। सो ये अपने को रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर है। समटाइम्स की हुंदा आ, आपां नूं कोई डायरैक्शनस दित्तियां हुंदियां आ कि किसी वैक्टर नूं आपां रिजॉल्व करना, आर वैक्टर नूं, है ना। तो आपां नूं क्या होगा भी आ ए वैक्टर है तो आ बी वैक्टर है, इहदे च रिजॉल्व कर दो। सो कदे कदे की हुंदा आ, असी आर वैक्टर नूं रिप्रजेंट करते हैं, सानू जो डायरैक्शनस दित्तियां होण सानू उन्हां डायरैक्शनस नूं मल्टीप्लाई करना पैंदा। समटाइम्स वी राइट एन ए वैक्टर, ठीक है, एम बी वैक्टर। सो कदे कदे आपां नूं जिहड़ा आ न्यूमरल्स दे नाल मल्टीप्लाई करके लिखना पैंदा। सो ये एक यूनीक जी गल हुंदी है, तुसीं इदां लिख सकदे हो। एक डेफिनेशन लिख लो, यूनीकनेस ऑफ कंपोनेंट वैक्टर्स, यूनीकनेस ऑफ कंपोनेंट वैक्टर इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है बेसिकली, टूल नहीं है ये। यूनीकनेस ऑफ कंपोनेंट वैक्टर, कंपो NENT शॉर्टकट मार के कंपोनेंट वैक्टर्स। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, it is to be noted that resolution of vector R vector into two component vectors along directions A vector, directions of vectors A and B अगर अपन नूं दित्ती है तो वो अपने कोल would be unique, is unique। लाइन रिपीट कर देना है, it is to be noted that the resolution of vector R into two component vectors along the direction of vectors A and B is unique। so for example जिद्दां आपां आ चीज़ लिखी है ना, so अगर इनू दोबारा लिखा जाए, कोई कहे भी इन्ना ए ते बी दे विच ही दोबारा लिखो तो उत्थे कोई डिफरेंट नंबर आ जाएंगे, डिफरेंट नंबर। फॉर एग्जांपल इत्थे एन डैश लिख लो तुसी, एन प्राइम प्लस एम प्राइम लिख लो, ठीक है। जे वो कहूगा डिफरेंट आ गए, डिफरेंट आऊगे तो की होगा, बेसिकली आप इन्हां दोनों नूं इक्वेट करांगे ना, आप कहांगे चलो ठीक है वैक्टर की वैल्यू तो सेम है, यूनीकनेस प्रूव करनी है, कितना प्रूव होगी, कोई डिफरेंट वैल्यू लिख ली, आ कोई होर अखर आ गया, कोई होर रखा, आप प्राइम करके देख लिया। सो असी की करांगे, असी आर वैक्टर नूं आर वैक्टर दे नाल इक्वेट तो कर ही सकते हैं, वैल्यू तो बराबर है। सो की हो जाऊगा अपने कोल, ए वाली वैल्यू कादे बराबर हो जाऊगी, एन ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर। हुण वैक्टर आपस में सीधे जुड़ते नहीं, ए वैक्टर का कोफिशिएंट इधर तो ए वैक्टर का इधर कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू वैक्टर कैलकुलस जां वैक्टर अलजबरा। सो जो बराबर होणगे तो इहदा की मतलब बन गया, सीधा जा मतलब बन गया कि एन डैश इज इक्वल टू एन है तो एम डैश इज इक्वल टू एम। सो इट मीनस कि जो सेम डायरैक्शन होवे तो वखरे वखरे बंदे कही जा रहे हैं नहीं ਇਹਦਾ आ नंबर आउंदा, ਇਹਦਾ आ नंबर आउंदा, तो गलत फहमी है, वो नंबर सेम ही आऊगा, ठीक है। यू कैन राइट हेयर दैट हैंस देयर इज वन एंड ओनली वन वे in which a vector can be resolved into two component vectors along the directions of two given vectors, ठीक है। अपने कोल सिर्फ इक्को ही तरीका आ कि जे कोई वैक्टर हैगा उहनूं दो वैक्टरां दीयां डायरैक्शनां दे विच सॉरी दो डायरैक्शनस दे विच अगर आपां वैक्टर्स लिख के तोड़ना है तो सिर्फ इक्को ही तरीका हुंदा, एक तो वध तरीका नहीं हुंदा, ठीक है। सो दिस वाज दी रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर इन एनी डायरैक्शन आपां कीता है। आपां एक तो रेजोल्यूशन देख ली फर्स्ट, दूसरा असी यूनीकनेस थ्योरम भी देख ली,
आ एक स्टैप ही आएगा प्रूव करने जे एक अद्धे नंबर च आ जाए तो देख लियो, ठीक है। सो नाउ हुण असी गल करते हैं नैक्सट द बिगेस्ट टेक्नीक ते मेरी फेवरेट की है रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर इन ए प्लेन कर लें आप स्टार्टिंग च। बेसिकली रैक्टेंगल वैक्टर जिन्ने मर्जी कर लो, अपने को प्लेन है शीट जी तुहानू पेपर पेज बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। सो ये की है प्लेन दे विच तां मेरे को एक्स ते वाई ही ड्रॉ हुंदा ओरिजिन है एक्स वाई, ठीक है। पहला केस ये है, दूजा अपने को 3 डायमेंशनल भी होगा, वो भी करके देख लाँगे आप रिजॉल्व, ठीक है। वो तुहानू छेती समझ आ जाऊगा। सो बेसिकली तुहानू रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैं समझा दिते सी की हुंदा है। हुण आपां दोबारा उहनूं प्रॉपरली करते हैं तो तुसीं किद्दां सिस्टमैटिकली उहनूं लिखना वो देख सकते हो। तुसीं स्टार्टिंग च डेफिनेशन ही लिख लो, इहदी इदां लिखो तुसीं व्हेन ए वैक्टर इज सप्लिटेड इनटू, ठीक है, व्हेन ए वैक्टर is splitted into two component vectors at right angles to each other, at right angle to each other। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਕੋਣ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ component NENT, the component vectors are called what? Rectangular components of a vector, rectangular TANG, ठीक है, rectangular components ऑफ ए वैक्टर, ठीक है पुत्त। सो बस इन्नी क गल है, ठीक है। ए दी डेफिनेशन है व्हेन ए वेक्टर इज सप्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपने को बनते किद्दां आ, हुण आपां ओह बनाउणा है, ठीक है। सो सब तो पहला तो तुसी डायग्राम ही ड्रॉ कर लो एक, ठीक है, सौखा हो जाऊगा। इथे एक्स लिख लो, इथे वाई लिख लो, कोई एक वैक्टर ले लो, इनू आप लिख लिया आर वैक्टर, अपनी मर्जी नाल भावें इस एंगल ते बना लो, भावें उपर बना लिया, जिदा मर्जी बना लिया, पर बनाना किसी एंगल ते है एक्स तो, ठीक है। इस एंगल नू तुसी लिख दो थीटा वैक्टर, ठीक है। सो उस तो बाद मेन काम की इहदे तो डॉटेड लाइन्स जिहड़ियां आ वो ड्रा कर दो, की बोलते हैं परपेंडिकुलर सुटते होंगे जिहड़े आपां, इस पॉइंट नू ओ ले लो, ठीक है, इनू पी ले लो, इनू क्यू ले लो, तो ये वाला पॉइंट अपने को आर रख लो, ठीक है जी। सो वैक्टर नू आपां की ले लिया, चलो ये पॉइंट आर ले लिया, आ वैक्टर आपां ए वैक्टर ले लेने, ठीक है। सो हुण तुसीं ऐ लिख सकते हो, लेट अस सपोज ए वैक्टर ए, let us suppose a vector A is represented by
OR ਵੈਕਟਰ, ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, OR ਵੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨਟੂ two rectangular components along x-axis and y-axis। कोई एंगल आ अपने को, सॉरी कोई वैक्टर आ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ O ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਲਾਈਨ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੋ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ O ਡਰਾ ਟੂ ਐਕਸਿਸ OX ਐਂਡ OY ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ, ਦ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ R ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ on x axis and y axis। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਬਣ ਜੂਗਾ, P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ OP ਲੈਂਥ ਹੈ we can write it as AX, ਠੀਕ ਹੈ। we can write this as AY। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ अगर A वैक्टर है मेरे को, उनका जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, मैं A लिख के उनके नाल पैर च X पा दिता, जोड़ा Y कंपोनेंट बनूगा Y वाले पासे, उहदे च मैं A दे नाल Y पा दिता। तुसीं इन्हां नूं ऐ लिख सकते हो। सो हैंस PR इज इक्वल एंड जोड़ा PR है वो अपने को OQ दे पैरेलल भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। बालियां गल्लां ना करिए, वी कैन राइट हेयर के फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो की आऊगा इत्थे, ट्रायंगल आ ले लो, इन ट्रायंगल OPR, in triangle OPR we get कि OR vector can be equal to OP vector plus PR vector, ठीक है जी। इदां ही है ना, एक वैक्टर आ हो गया, एक इधर चला गया, सो ये ओपोजिट हो गया डायरेक्शन इन्हां नालों। आप इनू लिख सकते हैं, दिस वैक्टर कैन बी रिटन एज सम ऑफ दीज टू वैक्टर्स। सो इन्हों लिख लो तुसी, OR की है, सॉरी OR वैक्टर मेरे को की है A वैक्टर, OP वैक्टर की बन गया मेरे को AX कंपोनेंट आ। हुण जिहड़ा RP है ये दे बराबर है, सेम लेंथ है ना, सो से डायरेक्शन भी सेम है, सो इनू असी AY लिख सकते हैं। सो प्लस AY वैक्टर बन गया, ठीक है जी। इन्नी समझ आ गई गल, असीं इहनूं इदां लिख सकते हैं। हुण नैक्सट जिहड़ी चीज़ आ, आपां इन्हां दे मैग्नीट्यूड्स ते उन्हां दी वैल्यू कड्डांगे। डायग्राम दोबारा ड्रा कर लैंदे आ, ईजी हो जू साडे लई। सौखी डायग्राम है बेटा, औखी नहीं गी, ठीक है। चलो डॉटेड दी बजाय सीधी हुई लाइन बन गई। थीटा O A वैक्टर है ये पॉइंट की सी मेरे को पॉइंट सीगा R, A सीगा P, आ सीगा Q, सो A AX सीगा, A AY सी। ये तो याद हो जूगा, ठीक है, बनाना किद्दां। सो हुण आपां की करिए, हुण आपां वैल्यूज़ कढणीआं। सब तो पहलां तां जिहड़ा एक्स एक्सिस हुंदा ते आ वाई एक्सिस है, याद रखो जिहड़ी एक्स एक्सिस की जिहड़ी डायरेक्शन हुंदी है अपने कोल वो आई कैप दे नाल लिखदे आं असीं, वाई दी जिहड़ी हुंदी है वो जे दे नाल लिखदे आं आपां डायरेक्शन, ठीक है। सो वी कैन राइट हेयर एज के अपने कोल जिहड़ा AX है, AS वैक्टर इज इक्वल टू AX मैग्नीट्यूड हो गया आई कैप, जिहड़ा AY वैक्टर है वो दे च की हो जू AY मैग्नीट्यूड हो गया ते जे कैप वैक्टर हो गया, ठीक है।
ਸੋ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, a ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax plus ay ਸੀਗਾ, we can write it as ax I cap ay j cap। ठीक है, बन गई गल। सो हुण असी इस एंगल बारे डिस्कस करनी है चीज़। ठीक है, असी की करना है, साडे कोल डायरैक्शनां तो असी ऐड कर लिया, असी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पुत ए एक्स ते ए वाई दी। ये आपां पहली स्लाइड 'च फाइंड आउट कर ली सी, तुहानूं याद होवे तां। असी इस ए एक्स की आ वाली लेंथ मेजर करनी है, कितनी है। ठीक है, एक आ वाली लेंथ मेजर करनी है, कितनी है। किद्दां फाइंड आउट करांगे, आ अपने कोल राइट एंगल है ना, अगर ये राइट एंगल है तो आ मेरे को की बन गई, की बोलते हुन्ने आपां इहनूं ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल जिद्दां अपने कोल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच दिस इज थीटा। नाउ वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर। ट्रिग्नोमेट्री सब नूं आउंदी हुंदी है बेटा। ये दो ही चीज़ां पहलियां आपां लिखणियां हुंदियां, एक साइन थीटा की वैल्यू लिख लो, एक कॉस थीटा की वैल्यू लिख लो। ठीक है, की लिखना है आ स्टैप तुसीं ऐ नहीं लिखना कापी च। इस तो बाद तुसीं की लिखना है, इस तो बाद लिखना है, कह दो इन ट्रायंगल ओ पी आर। सब तो पहला साइन थीटा लिखो। साइन थीटा इज इक्वल टू कादे आऊगा, राइट हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। की आ जाऊगा मेरे को पी आर बटा पी आर बाय ओ पी, सॉरी ओ आर। डन। सो असी इहनूं लिख सकते हैं पी आर बाय ओ आर कादे बराबर हो गया। पी आर की वैल्यू की है मेरे को मैगनीट्यूड, पी आर की वैल्यू हैगी है ए वाई के बराबर, ए वाई बटा ओ आर की है मैगनीट्यूड है, सिर्फ ए मैगनीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है जी। सो मेरे को की आ जाऊगा, इन्हों आप इदा लिख सकते हैं भी ए वाई बटा ए इज इक्वल टू साइन थीटा। मैं इस पासे लिख लिया हूँ। सो ए वाई की वैल्यू मेरे को की आ गई ए साइन थीटा आ गई। इदा ही कॉस थीटा की वैल्यू लिख लो। कॉस थीटा की होगा मेरे को बेस बटा हाइपोटेन्यूज, की आ जाऊगा ओ पी बटा ओ आर। ओ पी की है मेरे को ए एक्स, ओ आर की है ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। इधर पलने हैं, ठीक है, स्टेप छोटा हो जाऊगा। सो ए एक्स की वैल्यू मेरे को की आ गई ए कॉस थीटा। बन गई गल। सो आपां ए एक्स की वैल्यू ए वाई की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ इहदे च फिल कर दिए। सो वैल्यूज़ फिल की मेरे को की आ जू ए वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू आ जूगी ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। हो गया। सो दिस इज हाउ वी रिजॉल्व दिस वैक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आ जिहड़े ए कॉस थीटा ते ए साइन थीटा, इन्हां नूं असीं बोलदे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग मैगनीट्यूड ए कॉस थीटा है ते वाई एक्सिस दे अलॉन्ग ए साइन थीटा है। डन। सो इहदे तो बाद जे तुसीं कहो सर जी ये तो आपां ए वैक्टर की वैल्यू कढ लई, आपां ए दा मैगनीट्यूड तो कढिया ही नहीं। जे ए दा मैगनीट्यूड कढना तां ट्रिग्नोमेट्री है, ए एक्स है, आ ए वाई है। ठीक है। सो ए स्क्वायर कादे बराबर आ जाऊगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। की कर लांगे आपां इत्थे ए वैक्टर ए शुड बी इक्वल टू मैगनीट्यूड आप तो वैक्टर नहीं गा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बन गया। ट्रिग्नोमेट्री तो ही है ना, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लाती है आप राइट एंगल ट्रायंगल च। सो ये चीज़ आ गई। टैन थीटा जे आप कढ़ना है, डायरैक्शन कल्ली कढ़नी है, डायरैक्शन अपने को टेंजेंट ले लेने होंने आप। सो टैन थीटा मेरे को की आ जाना सिंपली हाइट बाय बेस, दैट इज ए वाई बाय ए एक्स। ठीक है जी।
सो ये आपां सारियां चीज़ां इहदे च कर लियां। की कीता असी राइट एंगल ट्रायंगल बना के पिछली स्लाइड खोल लीए। असी पहलां तां रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देख ली, फिर उन्होंने देखा भी ये किद्दां बनाई दे आ, ठीक है, आ चीज़ असी देख ली। इस तो बाद इन्हां दे कंपोनेंट्स दे असी मैगनीट्यूड्स फाइंड आउट कीते ट्रिग्नोमैट्री नूं यूज़ करके सिंपल स्टैप्स दे विच, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। So finally we got the value of a in terms of components. So this was the value of a vector. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ? ਬਾय ਅਪਲਾਈਂਗ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ? ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos थीटा। थीटा कितना है अपने को? थीटा की हुंदा जिहड़ा इन्हां दो एंगलों दे विच एंगल होवे, दो वैक्टर्स दे विच एंगल होवे, ठीक है। सो इहदे विच थीटा अपने को 90 डिग्री आ जाऊगा इन्हां दोनों दे वैक्टर्स दे विच। सो cos 90 0 हो जाता। अल्टीमेटली वी विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन नाल भी करके मैनूं फोटो खिंच के भेज दिओ। सो ये अपना हो गया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। अगर बेटा जी 3 डायमेंशन च गल कीती होवे, मैनूं टाइम देखने दो, अगर 3 डायमेंशन च गल कीती होवे, ठीक है। सो 3 डायमेंशन च की हुंदा है अपने कोल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिद्दां ठीक है, आ एक्स एक्सिस हो गया, आ वाई हो गया, आ जेड हो गया। सो मेरे को कोई पॉइंट इत्थे पिया, ठीक है, जिंदी मैं प्रोजेक्शन थले सुट्टां तो इत्थे कि होंदी है। सो इत्थे आ जेड एक्स का कंपोनेंट आ गया, आ जेड का आ गया, ठीक है। तो मान लो भी आ मेरे को ए वैक्टर बनता, विंगा टेढ़ा जिहा बन गया, तुसीं सीधा बना लियो, ठीक है। सो हुण आ की है मेरे को ए वैक्टर आ, ये बिल्कुल ऐ ला लो तुसीं भी जिवें तुहाडे कमरे दी एक कॉर्नर है, थल्ले वाला कॉर्नर, किसी भी कंध दे नाल देख लियो, थल्ले वाला कॉर्नर जिहड़ा जिथे दो वॉल्स जुड़दियां, ठीक है। तो एक थां ते तुसीं खड़े हो तो इत्थे तुहाडा हैड हो जाऊगा, सिर हो जू, तुसीं ये देखो भी उहदे कंपोनेंट्स बना के देखने हैं खड़े होके। सो आ एक एक्स एक्सिस वाले पासे जिहड़ा कंपोनेंट होऊगा इहनूं असीं लिख दांगे ए एक्स, जिहड़ा वाई वाले पासे होऊगा इहनूं असीं लिख दांगे ए वाई, जिहड़ा जैड वाले पासे होऊगा उहनूं असीं लिख दांगे ए जैड। सो सिंपली इहदे च की जुड़ जाना, इहदे च अपने कोल a vector would be equal to ax vector plus ay vector plus az vector, ठीक है। ये जो 3 डायमेंशनल च गल करते हैं आप, 3 डायमेंशनल, ठीक है, वर्ड दे विच कार्टेशियन कोआर्डिनेट्स। सो इहदे विच भी इदां ही इहनूं ऐ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a x i कैप ए वाई जे कैप ए जैड के कैप लिख सकते हैं इदा करके इन्हों आप। सो इन्हों चो ये वो भी निकले होना है, वैल्यू भी निकली होनी है। सो यदा क्योंकि राइट एंगल तो है सारे अपने को, सो जोड़ा यदा मैगनीट्यूड आऊगा वो अपने को इदा आ जाना ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जैड स्क्वायर, ठीक है। सो कुछ भी ये टफ नहीं गा, तो इदा आप लिख सकते हैं। जिहड़ियां इन्हां दियां डायरैक्शनस हुंदियां आ, डायरैक्शनस तुसीं याद रख लियो भी आप कॉस दे नाल ही लिख सकते हैं, ठीक है। वो इदा लिख सकते हुंदे आ भी, चलो वड्डी गल आ वो बाद चों आपां डिस्कस करांगे, ठीक है। जिद्दां इहदा एक्स दे नाल किहड़ा एंगल बन गया, एक्स दे नाल इहदा की एंगल बनिया अल्फा बन गया, ठीक है। वाई दे नाल इहदा एंगल की बन गया अपने कोल बीटा बन गया, तो जैड दे नाल की एंगल बनया इहदा वो अपने कोल गामा हो जाऊगा, इदा करके जिन्ना भी इत्थे बनूगा, ठीक है। सो वो अल्फा बीटा जिहड़े गामा बनणगे उन्हां दे आपां कोसाइनस करदे हैं, जदों इन्हां नूं करदे हैं वो नैक्सट किते आपां देखांगे किसी सैशन दे विच। सो हाले तक तुसीं रैक्टेंगल कंपोनेंट प्लेन वाला ही करना है, ठीक है। सो डायरैक्शन इन्हां दी इदां लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। सो ये अपने कोल तकरीबन जिहड़ा इस चैप्टर का काम मुक गया, जिहड़ा अपने काम दा सी।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।